Welcome to DIBNS Dehradun, affiliated to HNBGU Srinagar, Garhwal, Uttarakhand. Myself, Professor Varsha Parcha, Department of Chemistry and Pharmaceutical Chemistry. Today, I am starting with my module on spectroscopy. It's a second module which is now on infrared spectroscopy. I have already done few of the lectures on ultraviolet spectroscopy. So today we will be beginning with introduction to infrared spectroscopy. So let's begin. What is infrared spectroscopy? I have given you in my earlier modules a little bit knowledge about what spectroscopy is, what is electromagnetic radiation, how it interacts with the matter, and how absorption and emission spectroscopy comes into existence, and so on. Then in ultraviolet, we said that from electromagnetic spectrum, which part of the electromagnetic spectrum the light is being absorbed, and excitation of the electron comes from ground state to excited state. So same case, what is the basic principle behind infrared spectroscopy? Infrared spectroscopy is an important analytical tool for the extensive and intensive study of the structure of the molecule. It is also known as vibrational frequency as it results in the vibrational transitions. This technique can determine the functional groups present in the structure of a compound. Infrared spectra is due to change in vibrational energy accompanied by change in the rotational energy. So what happens in infrared spectroscopy? It's a very important analytical tool, very extensively used for the structure of the molecule. Even for study of the structure of the molecule, even for the formulations, when we go in for the formulations, we want to see the interaction with the excipients what we add in making the tablets and drugs and so many. So much of importance it is carrying for the study of interactions, study of your structure, knowing the molecule in depth. Now the question comes, what happens to a molecule when you irradiate with infrared spectroscopy? So there is a change in vibrational levels of the molecule. That is why it is also termed as vibrational frequency. It's also termed as vibrational frequency as there are vibrational transitions. This technique can determine what is the basic functional group present, because in UV students you have found that there was a chromophore, particular chromophore, which can absorb UV light and make electrons to get excited from ground state to excited state. But in this case, each and every functional group, including your hydrocarbon part also, that can show change in the vibration levels. So when there is a change in the vibration levels, that spectrum is recorded, and that is what happens in IR spectroscopy. Along with the vibrational change in the vibration levels, there is a change in rotational energy also. But for our much of our inference is we are getting from the change in the vibrational levels only. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बच्चों होता क्या है, ध्यान से सुनो. जैसे आपने यूवी लाइट में देखा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा, मॉलिक्यूल के पास एक कोई ऐसा टारगेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है. जब उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम 200 to 400 region and 400 to 800, you know, it's a visible region. Then the electrons become very active. They take that energy is getting absorbed and electrons get excited. They get excited, they absorb the energy, they go from ground state to excited state. So in the similar case क्या हो जाता है IR में, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है. हर एक मॉलिक्यूल की अपनी वाइब्रेशनल लेवल्स भी हैं और रोटेशनल लेवल भी है. जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन की थी, मेरे वो भी वीडियोस हैं, आप उस पर जाइए, क्लिक करिए, देखिए. उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जब इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है, तो आइदर तो वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस करता है या वो चेंज इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स करता है. तो लाइकवाइज आईआर में वाइब्रेशनल जो लेवल्स हैं उसमें चेंज आ जाता है. उस चेंज आने की वजह से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और कितनी ट्रांसमिट हुई या कितनी बाहर आई, कितनी रिफ्लेक्ट हुई, दैट इज व्हाट इज रिकॉर्डेड इन आईआर. इसमें साथ के साथ जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, साथ के साथ रोटेशनल चेंजेस भी आती हैं, पर ज्यादा इन्फ्लुएंस जो हमें ड्रॉ होता है वो हमें
वाइब्रेशनल से ही ड्रॉ होता है. द इंफ्रारेड रीजन में बी क्लासिफाइड इनटू 3 जोन्स. बेसिकली इसके 3 जोन्स होते हैं बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव वेव नंबर्स एंड देयर वेवलेंथ. इसको जनरली हम जैसे यूवी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ में, बट इसको आईआर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर में. वेव नंबर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके ब्रॉडली इसको हम क्लासिफाई करते हैं, 3 जोन्स में इसको क्लासिफाई करते हैं. एक होता है मिड आईआर रीजन, एक होता है नियर आईआर रीजन और एक होता है फार आईआर रीजन. ये तो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, मिड आईआर रीजन, नियर आईआर रीजन एंड फार आईआर रीजन. Mid IR region is between 2.5 to 15 micron. Near IR region is from 0.8 to 2.5 micron and far IR region is on 15 to 200 micron. Based on the wave numbers, ये तो मैंने माइक्रोन में बताया, हम वेव नंबर्स में भी इसको बता सकते हैं. तो मिड आईआर जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो हम ड्रग्स ले लें या चाहे हम नॉर्मल केमिकल्स भी ले लें, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड इन नेचर होते हैं, दे मोस्टली शो वेरी एक्टिव एब्जॉर्प्शंस इन अराउंड 4000 to 667 सेंटीमीटर्स इनवर्स. तो ये जो मिड आईआर रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है. नियर आईआर रीजन इज 12,500 to 4,000 centimeters inverse and far IR region is 667 to 50 centimeter inverse. इसमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जितनी हमें मिड आईआर रीजन से इंपॉर्टेंट मिलती है. तो ब्रॉडली हम कहते हैं जो ये आईआर का हमारा स्पेक्ट्रम है, ये आईआर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, और जब हम उसको इरेडिएट करते हैं मॉलिक्यूल को बच्चों, तो क्या होता है, जो ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें मिलती है वो हमें मिड आईआर रीजन में, जो कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वेव नंबर्स में 4000 से 667 सेंटीमीटर्स इनवर्स. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है. ये देखो, ये नियर आईआर रीजन एंड फार आईआर रीजन. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मेन हमारे को आईआर रीजन जो है वो मिड वाला जो है वही इंपॉर्टेंट है, 4000 से 667 सेंटीमीटर्स. और अगर आपने इसको माइक्रोन में करना है तो 0.8 से 2.5 तो हमारा नियर आईआर रीजन हो जाएगा, मगर 2.5 से 15 वाला जो है वही इंपॉर्टेंट रीजन है, मिड आईआर रीजन है. उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और 15 से 200 माइक्रोन में हमारा जो है ये फार आईआर रीजन है. ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है, अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. प्रिंसिपल तो यही है जो मैंने वैसे आपको बताया कि जब हम इरेडिएट करते हैं तो मॉलिक्यूल में चेंज इन वाइब्रेशन लेवल्स आती है, बट वो कैसे होता है, अब हम उसको बॉन्ड में और उसकी फ्रीक्वेंसी से हम उसको कोरिलेट करेंगे. जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं एक मॉलिक्यूल्स में, वो हमेशा कैसे कनेक्टेड होते हैं बच्चों, कैसे कैसे कैसे, बॉन्ड से, है ना. 2 एटम्स, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड. वो दोनों आपस में बॉन्ड से कनेक्टेड है, चाहे आयनिक बॉन्ड हो. नॉर्मली आयनिक बॉन्ड तो उतना बॉन्ड होता नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है. जब अट्रैक्शन की ये शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर करे या सिंगल करे या डबल करे या ट्रिपल करे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. तो कहने का मतलब है जो एटम्स या ग्रुप्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है आपस में जब कनेक्टेड होते हैं तो वो बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. एंड दीज बॉन्ड्स आर नॉट रिजिड इन नेचर. ये ऐसा नहीं है कि कनेक्ट हो गए तो बस अब ये पत्थर की लकीर हो गए, ये अब इनका जो है ये हम इसको तोड़ ही नहीं सकते. नहीं, आपको तो एक ध्यान भी होगा, मीथेन के बाद इथेन है, सपोज अगर इथेन है तो आप देखते हो वो घूमता रहता है, मूविंग पोजीशन में रहता है, अनटिल एनलेस कुछ रिजिडिटी इसमें हम स्टैब्लिश करते हैं. सो दीज बॉन्ड्स आर नॉट रिजिड इन नेचर बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल घूमता रहता है. दे मेंटेन some vibrations with frequency which is termed as natural frequency. इसको हम natural frequency कहते हैं. ये अपना घूमते रहते हैं तो naturally एक frequency उसके साथ associate होगी, उस vibration के साथ, उसको हम natural frequency कहते हैं. When IR radiation is passed, the absorption of infraradiation occurs that causes excitation. molecule excitation में आता है, उसको energy मिल गई. जैसे UV में हमने कहा एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन को लगा मैं अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा, ऐसे ही आईआर में उसको लगता है मैं अब ग्राउंड मेरे को एनर्जी मिल गई, मैं एक्साइट हो जाऊं, तो वो एक्साइटमेंट की स्टेट में आ जाता है. तो एक पीक ऑब्जर्व हो जाती है हमने जो अप्लाई करी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है. हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमने अप्लाई किया 2.5 माइक्रोन और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब इक्विवेलेंट होती है तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है ना. ये देखो, each vibration level is associated with a number of closely spaced rotational level. So IR spectra is considered as vibrational rotational spectra. ये एक बता रहा है CH3
CH2 और OH। इसमें हम देखो डिफरेंट चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। CH की भी दिख रही है हमें, कैसे कैसे इसमें अटैच्ड है। हम यहाँ OH को भी देख सकते हैं, हम यहाँ CO को भी देख सकते हैं। तो हर कोई बॉन्ड के साथ वो कनेक्टेड है और इसमें चेंज इन वाइब्रेशनल और रोटेशन लेवल आ जाता है। ठीक है। द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस अब होता कैसे है। प्रिंसिपल तो समझ गए कि चेंजेस आएंगे, लेकिन होता कैसे है। तो क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी लेवल ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर दोज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। वी perceive the vibration as heat. When we say a covalent bond between two atoms is of a certain length, we are citing an average because a bond behaves as if it were vibrating spring connected to two atoms. For a simple diatomic molecule, this model is easy to visualize. सोचो ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इसको ये देखिए, दिख रहा है? Yes, beautifully shown. ये दो एटम्स आपस में जुड़े हैं, तो सोचो ये स्प्रिंग की तरह इसके साथ अटैच्ड है और ये मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से चेंज इन द वाइब्रेशन लेवल आ सकता है। Every bond or a portion of a molecule or a functional group requires a different frequency फॉर एब्जॉर्प्शन। OH है तो डिफरेंट है, जैसे आपको पीछे मैंने स्लाइड दिखाई, CH में कुछ और वैल्यू दिखा रहा है, OH में कुछ और वैल्यू दिखा रहा है। तो हर कोई फंक्शनल ग्रुप के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए फॉर एब्जॉर्प्शन। हेंस कैरेक्टरिस्टिक पीक्स इज ऑब्जर्व्ड फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। हर किसी फंक्शनल ग्रुप का अपना ही एक फ्रीक्वेंसी रिजम होगा। मैं OH 3500 पे कर रहा है, OH 1100 पे कर रहा है, CH 28 पे कर रहा है। हर किसी का अपना अपना रीजन रहता है। लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, दो रीजन्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो जो फंक्शनल ग्रुप है और एक उसके अलावा फिंगरप्रिंट रीजन रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से, बट एक क्या इसमें होने वाला है ये आपको मैं समझा रही हूँ। तो एक तो हो गया जो फंक्शनल ग्रुप है, से OH है, CO है, C डबल बॉन्ड O है। लेकिन दूसरा है एक फिंगरप्रिंट रीजन। जैसे दो इंसानों का, डिफरेंट लोगों का फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं करते हैं, ऐसे ही दो कंपाउंड्स का फिंगरप्रिंट रीजन IR का कभी मैच नहीं करेगा until and unless they are the same compound। अगर वो सेम कंपाउंड है तब उनका फिंगरप्रिंट रीजन मैच करेगा, अदरवाइज ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है ये लगभग 600 से लेकर 1500 तक, हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। लेकिन वो वाला जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें मोस्टली बेंडिंग वाइब्रेशंस हमें अकर होती है। वो हर किसी कंपाउंड हो सकता है, हमारे पास एसीटोन है और दूसरा हमारे पास ब्यूटानोन है, तो फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन ही है, उसकी वैल्यू तो वही आएगी, उसकी स्ट्रेचिंग तो 1705 या 15 पे ही आएगी। लेकिन जो उसका फिंगरप्रिंट रीजन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे CH3, CH2, CH2 है, तो कंपाउंड्स डिफरेंट है, वो डिफरेंट ही दिखाता है। एक मिनट, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखो ये कैसे वाइब्रेट करता है और कैसे ये चेंजेस लाता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, इतना इजी नहीं है, तो क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं इसको ट्राई करूंगी। मैं आपको एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट समरी बताना चाह रही हूँ कि क्या बता रही हूँ कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। छोटी सी लाइन में, क्रिस्प लाइन में सम अप करूंगी। ये क्या होती है कि हम जब इंफ्रारेड रेडिएशन से मॉलिक्यूल को रेडिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें चेंजेस कहाँ आ जाती है, उसकी वाइब्रेशनल लेवल में चेंज आ जाती है। जैसे कि आपको ये दिखाया मैंने, ये स्प्रिंग की तरह दो एटम्स आपस में स्प्रिंग की तरह, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये स्प्रिंग की तरह, ये ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है, सोचो ये कर रहा है। तो जब हम इसको इरेडिएट करते हैं तो इसमें चेंज इसकी वाइब्रेशन लेवल्स में आ जाती है। तो एक फ्रीक्वेंसी के साथ ये मूव कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जब हम इरेडिएट करते हैं तो इरेडिएट करने के बाद अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो हमें पीक मिलती है विद दैट इज इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वाइब्रेशन जो IR जो रेंज है वो बताने के लिए कि वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। एक मिड IR रीजन है, एक नियर IR रीजन है और एक फार IR रीजन है। जो नियर IR रीजन और फार IR रीजन है वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन हमारे लिए मिड IR रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मिलता है। और दूसरी बात जो हमने सीखी आज कि हर किसी फंक्शनल ग्रुप का, जैसे ये CH है तो आप देख रहे हो वैल्यू 28502960 पे, इनको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या तो वेव नंबर में या नैनोमीटर्स में, है ना। तो इसको यहाँ पर हम वेव नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये 2850, लेकिन यहाँ OH देख रहे हैं तो 3590 3650। तो हर फंक्शनल ग्रुप का
अपनी ही एब्जॉर्प्शन है, अपनी ही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या मेन इंपॉर्टेंट हमें किसी भी आईआर किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रम में मिलेगा, वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। एक फिंगरप्रिंट, एक तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी हो गया जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप है, और फिंगरप्रिंट रीजन है जो कि दोनों दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कभी भी सेम नहीं हो सकता है, जैसे कि आपने इसमें देखा। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।